Hey cake bakers, this is me KD14. काफ़ी लोगों के बीच में मैंने ये डिस्कशंस देखी है कि what exactly is request handler and what exactly is response handler and why do we actually need it. PSR7 क्या होता है and PSR7 हर एक फ्रेमवर्क क्यों यूज़ कर रहा है and so many so things, right? So I'll just try to help you understand कि क्या डिफरेंस होता है PSR7 के request handler में और response handler में. It's very easy, it's very straightforward. So let's just dive into the code. Right? So what I'll do is I'll open the terminal and I'll go to my favorite directory, that is www directory, and I'll just create a new folder. You know what? Actually, मुझे folder create करने की ज़रूरत नहीं है. I'll be using CakePHP skeleton. So I'll just do composer, create project, CakePHP app, and maybe I'll just call it understanding stuff. Right? So that's it. राइट हम जस्ट वेट कर रहे हैं कि ये पूरा इंस्टॉल हो जाए. काफ़ी सारी चीज़ें मेरी कैश में से ही हो जाएगी एंड आई जस्ट हिट वाई एज इन येस टू इंस्टॉल डिफ़ॉल्ट्स. राइट नाउ आई विल गो टू अंडरस्टैंडिंग स्टफ फोल्डर एंड जस्ट ये कोड वर्क कैसा है. लेट्स ओपन अप सबलाइम टेक्स्ट. So I'll quickly open routes खोल देते हैं और routes के अंदर ये सारी चीज़ें, I don't need all of these. Yes, ये सब चीज़ें रखनी ज़रूरी है because you know copyright notices, licenses, so many things, right? So I'll just go ahead and I'll remove this. ये निकाल देते हैं. We don't want any of these. ये भी निकाल देते हैं because हमें सिर्फ ये देखना है कि response handler और request handler क्या करता है. So I'll remove all of these things जो हमें नहीं चाहिए. Right, so routes के अंदर हमें मिलता है builder, right? So builder से हम क्या करेंगे? So I'll just tell builder, routes builder, connect the forward slash, that is slash in slash to and map it to the following action. So controller होगा pages controller और action होगा हमारा index, right? So for now I'll just do index. Now next is I'll open pages controller. ये सारी चीज़ें. Okay, well I can't actually remove this, but yes I can remove this. Configure forbidden. Yep, let's keep response handler की भी हमें ज़रूरत नहीं है. ये सारी चीज़ें हम निकाल देते हैं. I'll just keep class pages controller extends app controller, right? I'll just keep it as it is. Class के अंदर हमारा function होगा public function index. Right, I'll save it. I'll go here, bin cake server, and hit enter. I'll open this localhost. So I'll just copy this, copy link, and I'll open my favorite Google Chrome incognito. So it says missing method, pages controller index. डिस्प्ले, ये डिस्प्ले पता नहीं क्यों ढूंढ रहा है. लेट्स ओपन राउट्स के अंदर हम देखते हैं हमने सेव नहीं किया था. सो आई जस्ट कम, आई विल रिफ्रेश इट. दैट्स इट. सो नाउ इट सेज मिसिंग टेम्पलेट. ओके, वेल हमें टेम्पलेट से कुछ लेना देना नहीं है. आई जस्ट डू रिटर्न नथिंग, राइट? रिफ्रेश एंड इट सेज वेल रिस्पॉन्स इंटरफेस, यानी आपका जो रिस्पॉन्स है ना वो रिस्पॉन्स इंटरफेस का होना चाहिए. राइट, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज़ दिस? सो वरी नॉट, हमें रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्स की ही हमें रिस्पॉन्स क्लास बुलाना ज़रूरी नहीं है. राइट, हम अगर देख लें कि CakePHP हमें दिस के अंदर क्या क्या सुविधाएं दे रहा है तो हम जस्ट करेंगे PR दिस एंड एक एग्जिट मार देते हैं. लेट्स रिफ्रेश इट. सो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये पेजेस का जो ऑब्जेक्ट है विच इज़ दिस. राइट, सो दिस के अंदर हमें दूसरा ऑब्जेक्ट मिलता है, दैट इज़ सर्वर रिक्वेस्ट. राइट, इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें मिलती हैं, जैसे सेशन ऑब्जेक्ट मिलता है, फ्लैश मैसेज मिलता है, and of course the CSRF token मिलता है, right? And finally we also see response object. So what exactly is request and response handler? Request handler is the handler that handles request. यानी client क्या बोल रहा है, आपका browser क्या बोल रहा है. So that is request handler. Response handler is what your server is saying. यानी आपका server कहना क्या चाहता है, right? So I'll go here and I'll just do this request and दूसरा PR करते हैं और इसे बोलते हैं this
रिस्पॉन्स, ताकि हम इसके अंदर देख सके कि एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है ये, राइट। रिफ्रेश, यप, ओके। सो रिक्वेस्ट हैंडलर है, एंड फाइनली देयर इज दिस रिस्पॉन्स हैंडलर, राइट। बीच में ये BR है जो दिख नहीं रहा है, बट एनीवे। सो रिस्पॉन्स हैंडलर में ये बता रहा है कि ये फाइल नहीं है, और ये जो हेडर है इसका दैट इज टेक्स्ट HTML, एंड दैट्स इट। एंड जो स्टेटस है इसका दैट इज 200, राइट। इट्स नॉट एन एरर। नाउ इसको हम यूज़ कैसे करें? सो आई विल टेल यू। सो काफ़ी ईजी है। वी जस्ट डू दिस रिक्वेस्ट, oops, request is, and let's say ये request किस चीज़ की है? if we want to figure out कि ये request क्या है, तो we can just ask like is this request get, ठीक है? So I'll just do var dump, या तो फिर हम debug function भी यूज़ कर सकते हैं, but you know what, let's do var dump because मैं काफ़ी latest हूँ, and I'll do exit, right? I'll refresh, right? So it says this request is get, ये get request है। हम चेक करेंगे क्या ये request post है, ये नहीं है, क्या request मोबाइल फ़ोन से आई है। So I'll just go ahead and I'll refresh and it says boolean false, but you know what, this is because जब भी हम refresh, जब भी हम developer tools खोलते हैं, and if I click on network and if I refresh, right, तो देखते हैं local के अंदर क्या जा रहा है। So ये जनरल हेडर्स हो गए, ये रिस्पॉन्स हेडर्स हो गए, और ये हो गए हमारे रिक्वेस्ट हेडर्स। तो रिक्वेस्ट हेडर्स के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमें बता रहा है कि ये है गूगल क्रोम वर्जन 91, और ये चीज़ें हैं हमारी, ठीक है, ये हमारा ब्राउज़र है। बट इफ़ आई एक्चुअली डू दिस, राइट, एंड इसे मैं कर देता हूँ 150%, और ये भाई साहब को थोड़ा सा कहता हूँ साइड में हो जाइए, इसे ऐसे रखते हैं। ओके, लेट्स कीप इट दिस वे, राइट। अभी हमने क्या किया था, दिस रिक्वेस्ट इज मोबाइल। सो अभी हमने मोबाइल टॉगल कर दिया है डीबगिंग टूल्स में से, लाइक इंस्पेक्ट एलिमेंट टूल्स में से, एंड हम करते हैं रिफ्रेश एंड इट्स इज बूलियन ट्रू, राइट। वाई? बिकॉज ये जो है ना, इसने फेक किया है मोबाइल ब्राउज़र को, राइट। सो दिस रिक्वेस्ट इज मोबाइल फ़ोन। अगर हमें ये पता चल गया कि अगर मोबाइल से कोई आ रहा है, सो वी कैन डू मैनी थिंग्स। वी कैन चेंज द CSS, वी कैन चेंज द जावास्क्रिप्ट, वी कैन चेंज हाउ आवर सर्वर हैंडल्स द रिक्वेस्ट, राइट। अभी सपोज मैं इसे बंद कर देता हूँ, फिर भी ये बूलियन ट्रू ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, राइट। बट इफ़ आई जस्ट कम एंड रिफ्रेश इट, ये वापस से फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने ऑफ कोर्स द फेक जो था हमारा यूज़र एजेंट, वो हमने निकाल दिया है, राइट। सो ये बात हो गई दिस रिक्वेस्ट की। इसके अंदर हम बहुत डीप में जा सकते हैं। सो कमेंट्स के अंदर मुझे बताइए कि आप और क्या जानना चाहेंगे रिक्वेस्ट हैंडलर के बारे में, और लेट्स डाइव इन टू द रिस्पॉन्स हैंडलर, राइट। रिस्पॉन्स हैंडलर क्या होता है? सो लेट्स डू रिस्पॉन्स। सो रिस्पॉन्स जो है, रिटर्न दिस ऑफ रिस्पॉन्स, राइट। अभी रिफ्रेश कर देते हैं तो ये ब्लैंक हो गया। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्स में हमने कुछ डाला ही नहीं था। बट इफ़ आई एक्चुअली डू दिस, रिटर्न नथिंग, और रिफ्रेश करते हैं, ओके, सी रिस्पॉन्स हैंडलर। बट अगर मैं कर दूँ विथ स्ट्रिंग बॉडी, और यहाँ पर मैंने अगर बोल दिया नथिंग, रिफ्रेश एंड इट सेज नथिंग, राइट। नाउ रिस्पॉन्स हैंडलर की हमें क्या ज़रूरत है, राइट। रिस्पॉन्स हैंडलर की हमें ज़रूरत इसके लिए पड़ती है क्योंकि हम ब्राउज़र को बता सके कि हमने जो अभी आपको रिक्वेस्ट दी है वो एग्जैक्टली क्या चीज़ है, राइट। इज़ इट अ PHP फाइल, इज़ इट अ JPEG फाइल, इज़ इट अ JSON, क्या है ये हम डाउनलोड करना चाहते हैं या ये हम सिर्फ यूज़र को बताना चाहते हैं, ओके। इसके बारे में हम थोड़ा सा डीप जाएंगे। सो लेट्स ओपन डेवलपर टूल्स, और इससे मैं कह देता हूँ भैया ज़रा नीचे आ जाइए, and let's refresh, right, and let me click on localhost. So response handler में connection उसने close कर दिया, of course, right, and बता दिया है कि भाई ये PHP काफ़ी पुरानी सदी के यूज़ कर रहा है, and that's it, right. So इसके अंदर उसने हमें सिर्फ ये बता दिया कि content type हमारा है text HTML. Now let's say with string body type के अंदर हम कर देते हैं JSON encode, और इसके अंदर हम डाल देते हैं टाइप्स ऑफ डॉग्स, राइट। सो टाइप ऑफ डॉग्स, एंड टाइप ऑफ डॉग्स के अंदर हम दूसरी एरे डाल देंगे विच इज़ मियाओ डॉग्स एंड बार्किंग डॉग्स, राइट। परफेक्ट एग्जाम्पल्स,
एंड इसे आके मैंने रिफ्रेश कर दिया. सो व्हाट डू आई सी, ये जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है, राइट, ये है टेक्स्ट HTML. रिस्पॉन्स पे मैंने क्लिक किया और उसके प्रीव्यू पे क्लिक किया. ओके, दिस लुक्स लाइक JSON ऑब्जेक्ट, बट इज इट रियली ए JSON ऑब्जेक्ट? क्या ये रियली JSON ऑब्जेक्ट है? नो, टेक्स्ट HTML. सो काफ़ी बार ये मैंने देखा हुआ है कि लोगों को पार्ट्स JSON करना पड़ता है jQuery के अंदर, विच इज़ पार्ट्स JSON, राइट. कितने लोगों ने ये काफ़ी बार यूज़ किया हुआ है, इवन दो द रिस्पॉन्स दैट दे गेट इज़ इन JSON फॉर्मेट में ही उनको रिस्पॉन्स दिया जाता है, फिर भी उनको पार्ट्स JSON करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि अभी जो हमें रिस्पॉन्स मिला है ना, ये JSON नहीं है, ये स्ट्रिंग है. ठीक है, अभी क्या करते हैं, हम इसे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और रिस्पॉन्स को निकाल के रिस्पॉन्स वेरिएबल में हम स्टोर कर देते हैं, राइट. और रिस्पॉन्स में हम बता देते हैं विथ टाइप कि क्या टाइप है, राइट. और इस पे हमने बता दिया ये है JSON. और थोड़ा सा इसे ओवरराइट कर देते हैं और ये जो भाई साहब यहाँ पर अभी वेट कर रहे थे उनको हम अटैच कर देते हैं रिस्पॉन्स के साथ. सो रिस्पॉन्स विथ टाइप JSON, राइट. सो इसे मैं जस्ट यहीं पर रखता हूँ और दूसरे टैब में खोल देता हूँ. रिफ्रेश, राइट क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, क्लिक ऑन नेटवर्क, वापस से रिफ्रेश, क्लिक ऑन लोकल होस्ट, एंड व्हाट डज इट से? एप्लीकेशन JSON, राइट. सो दिस इज द डिफरेंस. हाँ, ये थोड़ा सा आपको व्यू में भी थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, बट यू सी जैसे ही हमने एप्लीकेशन JSON को हमने रिस्पॉन्स में डाल दिया है, जो डेवलपर है, जो आपका फ्रंट एंड इतनी मेहनत से बना रहा है, रिएक्ट पे बना रहा है या तो फिर एंगुलर से बना रहा है, जो वेट कर रहा है कि आप डेटा उसे राइट देंगे, उसको फिर भी JSON में पास करना पड़ता है एंड उसमें भी काफ़ी सी बार एरर्स आ जाती है, राइट. सो जब भी आप ये करते हैं तो फिर आपकी एरर्स मिनिमल हो जाती है, राइट. सो लेट्स से अभी तो ये बात हो गई विथ टाइप की और विथ रिस्पॉन्स बॉडी की. व्हाट अबाउट फाइल्स, राइट. लेट्स से मुझे चाहिए कि पेजेस कंट्रोलर मुझे डाउनलोड में डालना है, राइट. लेट्स पुट इट दैट वे. सो रिस्पॉन्स विथ फाइल, और विथ फाइल के अंदर मैंने डाल दिया word www understanding stuff src controller pages controller .php. और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ये है डाउनलोड ट्रू. दैट्स इट. अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली ये मुझे सब कहाँ से पता चल दिया, तो फिर ये काफ़ी इजी है. विथ फाइल पे मैंने जस्ट क्लिक किया, मैंने कंट्रोल दबा के रखा मेरे सबलाइम एडिटर पे और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया विथ फाइल. सो विथ फाइल के अंदर हमें क्या दिखना है कि विथ फाइल बता रहा है कि आपका पाथ क्या है, आप जो फाइल आप डाउनलोड पे डालना चाहते हैं उसका क्या है, और आप सेकेंडली आप इसमें ऑप्शंस क्या क्या डालना चाहते हैं. जैसे कि ऑप्शंस पे डिफ़ॉल्ट इन्होंने डाला हुआ है नेम एंड डाउनलोड, राइट. सो डाउनलोड कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स, विच इज़ boolean, राइट. यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड इफ़ ट्रू सेट्स डाउनलोड हेडर एंड फोर्सेस फाइल टू बी डाउनलोडेड rather than displayed inline. सो चाहे ये JPEG फाइल ही क्यों ना हो, ये सीधा डाउनलोड पे फोर्स कर देगा. लेट्स ट्राई दिस, राइट. इसे रिफ्रेश करते हैं एंड आई से इट सेज word www understand stuff. क्या दिक्कत हो गई? अंडरस्टैंडिंग स्टफ, राइट. सो बहुत सी बार हमें ये होता है कि गलती सामने वाले की है, सामने वाले की हर बार नहीं होती गलती. सो रिफ्रेश एंड इट सेज मिसिंग टेम्पलेट. क्यों? क्योंकि मैंने इसे रिटर्न नहीं किया था. अभी मैंने रिटर्न कर दिया एंड रिफ्रेश किया. यप, एज यू कैन सी पेजेस कंट्रोलर यहाँ पर डाउनलोड हो गया एंड आई कैन ओपन इट. सो देयर इज़ वन मोर पेजेस कंट्रोलर, राइट. अभी ये हमारी बात हो गई थी PHP फाइल की. PHP फाइल हम कभी भी ऐसे नहीं बता सकते, वो हमेशा इंटरप्रेट हो जाती है ब्राउज़र तक आते आते, राइट. सो नेक्स्ट आई ट्राई वेब रूट के अंदर इमेज के अंदर cake.power.gif है. लेट्स ट्राई दैट, राइट. सो क्या ये सोर्ट्स फोल्डर के अंदर है? नहीं, ये सोर्ट्स नहीं है, ये वेब रूट के अंदर है. वेब रूट के अंदर img के अंदर cake.power.gif. GIF, right? I'll refresh and it says Cake Power GIF. Open करते हैं. Okay, this is Cake Power. राइट. सो रिस्पॉन्स में हम क्या कर सकते हैं, हम रिस्पॉन्स में हम ब्राउज़र को बता सकते हैं कि
भैया आपको देना क्या है, ठीक है, आपको हम जेसॉन तो दे रहे हैं, तो फिर क्या जेसॉन हम स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दे रहे हैं या रियली जेसॉन जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह हम आपको दे रहे हैं? XML है तो फिर क्या हम आपको XML एज अ टेक्स्ट दे रहे हैं या रियल XML दे रहे हैं? सो रिस्पॉन्स हैंडलर की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, और जो रिक्वेस्ट हैंडलर है आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम ये जान लें कि काफ़ी सारे मेरे डेवलपर भाई हैं, भाई बहन है जिन्होंने ये कंप्लेन की हुई है कि रिस्पॉन्सिव बनाते बनाते उनके CSS वालों की कमर टूट जाती है, राइट? सो हम जब ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या ये वेबसाइट मोबाइल की है या नहीं है, तो हम डिफरेंट CSS कंप्लीटली बना सकते हैं, राइट? देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू इफ़ वी जस्ट अंडरस्टैंड रिक्वेस्ट हैंडलर क्या है, रिस्पॉन्स हैंडलर क्या है। आई होप ये जो बेसिक डेमो जो मैंने बताया था, दे शुड हेल्प यू गेट स्टार्टेड। एंड कहीं पर भी अगर आप अटक रहे हो तो जस्ट फील फ्री टू लेट मी नो इन कमेंट्स में मैं दोनों भाषा में रिस्पॉन्ड करूँगा, वेदर इट इज़ हिंदी और इंग्लिश, राइट? एंड अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आपके स्टूडेंट कोलीग्स के साथ शेयर कीजिए, जो वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, अपने मॉम डैड को बताइए कि देखो आप कितना पढ़ाई कर रहे हो, एंड जस्ट गिव अ लाइक एंड थम्स अप।